Hello students, welcome back to my channel. So this is the 26th mock test in this series, and in this mock test we will cover weed management in field horticultural and plantation crops. Moreover, we will discuss the general principles of weed management and what are the different terminologies associated with weed management, so that you will be conceptually clarified, and whatever questions it may ask, you will able to handle that question, you will able to answer that question, right? And whatever your need is, of course, if you are you want lecture about principles of agronomy, then go to the playlist. There is already a playlist about principles of agronomy. Then if you want lectures on field crops, then there is a playlist on field crop. Then if you are you are weaker in problem solving, numericals of agronomy, suppose seed rate, fertilizer dose calculation, herbicide dose calculation, etc., you can go to playlist and watch the lectures. Then if you are weaker in statistics, if you do not know about statistics, if you do not know what are the questions asked in different agri competitive exams in from statistics, then you can go and watch statistics section. So there are different sections I have covered, and there are different playlists also prepared for according to your requirement, right? So whatever your requirement is, you can search in the playlist, or you can search in the videos. So there are so many videos I have already uploaded, whether conceptual video, then mock test, everything. You can go and watch them. And if you like our effort, if you like, if you are getting something out of our lecture, then you just subscribe to our channel, and you just share our video, so that other students who are associated with you, who are appearing for different agri competitive exam, they can also get benefited. Because our motive is to reach to each and every students who are fundamentally not that much strong, or whether you are revising anything, so you will be like clarified the things again and again, so that it will retain in your memory for longer term, and you can easily avoid negative marking, and you can easily get a higher score in different agri competitive exam. So let's start with weed management section. So what is the first question? Among all the pests, loss of agricultural crop yield by weeds is. So there are different kinds of pests. बहुत सारे पेस्ट होते हैं क्रॉप के, लाइक इंसेक्ट, फंजाई, देन पैथोजेंस, देन ह्यूमन पेस्ट, देन वीड पेस्ट, डिफरेंट पेस्ट होते हैं. तो उनमें से वीड का वजह से क्रॉप यील्ड में कितना लॉसेस होते हैं ऑन एन एवरेज? सो ऑप्शंस आर 12%, 22%, 29%, 37%. द राइट आंसर इज 37%. सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वीड के वजह से होता है, बट फार्मर्स को लगता है कि बहुत सारे डिजीज़ के और पेस्ट की वजह से होता है, तो इसीलिए फार्मर्स जनरली इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड ये सब अप्लाई करता है. लेकिन एक्चुअली जो मेजर प्रॉब्लम है क्रॉप प्लांट का, जो बायोटिक इंटरफेरेंस है, वो वीड की वजह से आता है. सो वीड्स आर ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर. साइलेंट killer. Why weeds are called silent killer? Because when weeds affect the crop plants, the symptoms are not visualized. You cannot see that weeds are affecting the crop, because it is silently removing all the nutrients, all the growth factors of what are needed for crop. Okay, and it is competing with the crop plant, so you cannot identify that this is the problem due to weeds and all. So that's why weeds are known as silent killer. weed को क्यों silent killer बोला जाता है? क्योंकि अगर weed अफेक्ट करता है क्रॉप को, तो उसका एक विजुअल सिम्टम नहीं दिखाई देता है. मैक्सिमम जो लॉसेस होते हैं वीड्स की वजह से होता है. देन 29% इंसेक्ट की वजह से, 22% पैथोजेंस की वजह से, एंड अदर पेस्ट जैसे कि ह्यूमन पेस्ट हो गया, या फिर एनिमल्स हो गया, अदर एनिमल्स हो गया, उसकी वजह से 12% होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the wild relative of maize? Which among the following is the wild relative of maize? Options are Allium biennial, Euclena mexicana, Saccharum spontaneum, Carthamus oxycantha. The right answer is Euclena mexicana. This is the wild relative of maize. So wild relative यानी मतलब जो भी हम प्लांट आज कल्टीवेट कर रहे हो, वो कभी ना कभी वाइल्ड थे, उसको डोमेस्टिकेशन करके हम लोग उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उनको एक प्रॉपर इनपुट दे रहे हैं, ताकि हम लोग उससे मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन पा सकें. तो पहले जो जैसे यूक्लेना मैक्सिकाना जो है, इसको बोलते हैं वाइल्ड रिलेटिव ऑफ मेज. एलियम भिनियल जो है उसको बोलते हैं वाइल्ड गार्लिक. ओके, वाइल्ड गार्लिक. देन सैकरम स्पॉन्टानियम, इसको बोलते हैं वाइल्ड शुगर कैन. वाइल्ड शुगर कैन. ओके, कार्थामस ऑक्सिकांथा, इसको बोलते हैं वाइल्ड सनफ्लावर.
wild safflower. Okay, so these are some wild species. Then we domesticate the species, we select different lines from the species and we cultivate those species. So that is called domestication. Next question: which among the following family is having largest number of major और serious weeds? कौन सी फैमिली के अंदर ज़्यादातर जो है मेजर और सीरियस weeds पाया जाता है? ऑप्शन आर पोएसी, एस्ट्रेसी, साइप्रेसी, सोलानेसी. द राइट आंसर इज पोएसी. पोएसी जो है ये ग्रास फैमिली है, आपको पता है ग्रास फैमिली, या फिर डिफरेंट सीरियल्स जो होते हैं वो पोएसी के अंदर आते हैं. इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वीड्स जो कि सीरियस वीड्स है वो पाए जाते हैं. देन नेक्स्ट टू पोएसी एस्ट्रेसी फैमिली. सो ये दोनों ऑलमोस्ट 50% सीरियस वीड्स है, ये दोनों फैमिली के अंदर आते हैं, पोएसी एंड एस्ट्रेसी. पोएसी, एस्ट्रेसी, साइप्रेसी, सोलानेसी एंड और कुछ फैमिली है, उनके टोटल 7-8 फैमिली के अंदर से मतलब अराउंड 80% जो है वीड्स इसी के अंदर चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन: द क्वांटिटी ऑफ ग्लाइसेल 40 SL रिक्वायर्ड इफ recommended dose of glyphosate is 1 liter per hectare. Okay, the quantity of glycel 40 SL required if recommended dose of glyphosate is 1 liter per hectare. Options are 400 ml, 1000 ml, 2500 ml, 4000 ml. द राइट आंसर इज 2500 ml. सो ये क्वेश्चन को आप देख लो पहले, मतलब अगर आप कर लिए हो तो फिर आप स्किप कर सकते हो इसको, नहीं तो अगर जो लोगों को प्रॉब्लम होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी सेपरेट वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड कर लिया हूँ कि कैसे कैलकुलेट करोगे हर्बिसाइड डोज. ओके, सो यहाँ पे जो ग्लाइसेल है ये एक ट्रेड नेम है. किसका ट्रेड नेम? ग्लाइफोसेट का. ओके, ट्रेड नेम यानी इसको कंपनी जो है फॉर्मुलेट करता है. ग्लाइफोसेट एक केमिकल है, एक हर्बिसाइड है ग्लाइफोसेट, जो कि एक केमिकल फॉर्म है. उसको डिफरेंट एडजुवेंट या फिर कैरियर सॉल्वेंट डिफरेंट ऐड करके ग्लाइसेल एक फॉर्मुलेशन होता है जिसमें 40% जो है ये परसेंटेज है, परसेंटेज एक्टिव इंग्रेडिएंट. मतलब ग्लाइसेल 100 ml अगर हम लेंगे तो फिर 40 ml जो है उसमें ग्लाइफोसेट रहेगा. SL मतलब सॉल्युबल लिक्विड फॉर्म में ये है, एक फॉर्मुलेशन है. ओके, तो हमको 1 लीटर पर हेक्टर ये रिकमेंडेड डोज है ग्लाइफोसेट का. ग्लाइफोसेट चाहिए 1 लीटर पर हेक्टर टू कंट्रोल डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीड्स. ओके, सो 40 SL है, तो क्वांटिटी ऑफ हर्बिसाइड जो फॉर्मुलेशन है उसको कितना, उसका फॉर्मूला क्या है? डोज डिवाइडेड बाय एक्टिव इंग्रेडिएंट इनटू 100. यानी डोज कितना है यहाँ पे? 1 लीटर यानी 1000 ml. 1000 ml डिवाइडेड बाय एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है? 40. ओके, इंटू 100, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 2500 ml. और भी क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, मतलब हर्बिसाइड को लेके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है वीड मैनेजमेंट में. जैसे वीड स्मूदरिंग इफेक्ट एक हो गया, पूछ सकते हैं वीड स्मूदरिंग इफेक्ट. ये क्या होता है? सपोज हम सोल क्रॉपिंग करते हैं, सोल क्रॉपिंग, अनदर इज इंटरक्रॉपिंग करते हैं. तो कैसे इंटरक्रॉपिंग करने से हमारा वीड सप्रेस होता है? सोल क्रॉपिंग में ऑब्वियसली स्पेसिंग ज़्यादा रहता है, वाइडर रहता है, और वहाँ पे जो है वीड्स ईजिली सबसे तेज़ी में ग्रो कर सकता है. लेकिन जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? एक स्मूदरिंग इफेक्ट मिलता है वीड को, ताकि वीड जो है स्टंटेड होकर रह जाता है वहीं पे क्रॉप फॉलिएज के अंदर. तो उसको कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि सपोज वीड ड्राई मैटर फाउंड इन सोल क्रॉपिंग माइनस वीड ड्राई मैटर फाउंड इन इंटरक्रॉपिंग डिवाइड बाई वीड ड्राई मैटर फाउंड इन सोल क्रॉपिंग इंटू 100. तो ये हो जाएगा वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी. ओके, WSE. देन वीड इंडेक्स क्या होता है? वीड इंडेक्स एक होता है, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी होता है. ओके, सो ये हर्बिसाइड का कितना एफिशिएंसी है उसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है. कैलकुलेशन ऑफ हर्बिसाइड डोज हो गया, क्वांटिटी हो गया, वीड स्मूदरिंग एफिशिएंसी हो गया, वीड इंडेक्स, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी. ये सम कॉमन जो है न्यूमेरिकल्स है जिसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन: द ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड इज हाइएस्ट फॉर. द ड्यूरेशन of critical weed competition period is highest for. Options are transplanted rice, direct seeded upland rice, tall wheat, sugarcane. The right answer is direct seeded upland rice. So what is critical weed competition period? Critical weed competition period होता क्या है? Critical weed competition period यानी उसी टाइम फ्रेम में अगर हम वीडिंग नहीं करते, अगर हम वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते, तो क्रॉप को सबसे ज़्यादा लॉसेस होगा.
सपोज हम एक राइस क्रॉप ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसका क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कंपटीशन है 25 to 45 डेज। ओके, अगर हम 25 डेज से पहले वीड कंट्रोल कर रहे हैं या फिर 45 डेज के बाद वीड कंट्रोल कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, राइट। तो उसी पीरियड 25 to 45 डेज जो पीरियड है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड, जिसमें हम वीड मैनेजमेंट करेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, हमारा वीड कंट्रोल एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, राइट। तो क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड जनरली जो है 1/3 to 1/4 जो पीरियड है। ओके, एक क्रॉप सपोज 100 डेज का है तो फिर 30 से 25 डेज, सपोज 1/4 पीरियड मतलब 25 डेज से लेके 1/3 मतलब 33 डेज तक जो है उसका वीड क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड रहता है। तो 1/3 to 1/4 पीरियड जो है वो होता है क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड फॉर ए क्रॉप। तो उसी के बीच में हमको वीड मैनेजमेंट मस्ट करना है। तो ये जो क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड है डायरेक्ट सीडेड अपलैंड राइस के लिए सबसे ज़्यादा है, मतलब थ्रू आउट द ग्रोथ सीजन इसका वीड्स प्रॉब्लम दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, enzyme responsible for the selectivity of propanil in rice is, enzyme responsible for the selectivity of propanil in rice is, options are aryl acyl amidase, glutathione S transferase, cytochrome P450 monoxygenase, beta oxidase। The right answer is aryl acyl amidase। इसका मतलब क्या है? एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्टिविटी ऑफ प्रोपानिल इन राइस, इसका मतलब है कि जब भी हम कोई हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं क्रॉप में ऐसा एक मैकेनिज्म रहता है, मैकेनिज्म जो कि उस हर्बिसाइड को क्विकली डिग्रेड करता है या फिर मेटाबोलाइज कर देता है, यानी उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो क्रॉप को अफेक्ट ना कर सके। ये जो अराइल एसाइल अमीडेज है ये राइस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये क्विकली जो प्रोपानिल को है वो डिग्रेड कर देता है। लेकिन जो वीड्स से रहता है राइस फील्ड में, जैसे कि एकाइनोक्लुआ रहता है, तो वो क्या है वहाँ पे अराइल एसाइल अमीडेज का जो क्वांटिटी है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, तो ये प्रोपानिल को क्विकली डिग्रेड नहीं कर पाता, इसीलिए प्रोपानिल इसको अफेक्ट करता है और कंट्रोल कर देता है। ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज जो है ये मेज और सोरगम में जो है एट्राजिन को डिग्रेड करता है। ओके, एट्राजिन सिलेक्टिविटी इन मेज एंड सोरगम के लिए ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज जो है ये काम करता है। साइटोक्रोम P450 मोनोक्सीजिनेज जो है ये आइसोप्रोचुरॉन या फिर सल्फोसल्फुरॉन जो है व्हीट में उसके लिए सिलेक्टिविटी बन जाता है, मतलब उसको डिग्रेड करता है। बीटा ऑक्सीडेज क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन जो है ये डिफरेंट पल्स क्रॉप में, सपोज डिफरेंट क्रॉप्स में हम 2,4-D का जो मैकेनिज्म है, 2,4-DB का मैकेनिज्म, 2,4-D आपको पता है एक पोटेंट हर्बिसाइड है फॉर ब्रॉड लीफ वीड्स, बट अगर हम 2,4-DB अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ पल्सेस, ओके, पल्सेस एक क्या है, पल्सेस का ब्रॉड लीफ रहता है, तो अगर वहाँ पे 2,4-D हम अप्लाई करेंगे तो फिर वो पल्सेस को फाइटोटॉक्सिसिटी करेगा और मार देगा। लेकिन हम अगर 2,4-DB अप्लाई करते हैं तो वो सेफ फॉर पल्सेस। क्योंकि पल्सेस में बीटा ऑक्सीडेज जो है एंजाइम वो नहीं रहता है, लेकिन दूसरा जो ब्रॉड लीफ वीड्स है वहाँ पे रहता है। तो होता क्या है, जब हम 2,4-DB अप्लाई करते हैं तो पल्सेस को वो कन्वर्ट नहीं होता है। 2,4-DB इज एन इनएक्टिव फॉर्म। ओके, ये टॉक्सिसिटी सिम्टम नहीं दिखाई देगा अगर हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ये जो 2,4-DB दूसरे क्रॉप पे पड़ा जो कि ब्रॉड लीफ वीड्स है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बीटा ऑक्सीडेज उस क्रॉप में रहेगा। तो बीटा ऑक्सीडेज क्या करेगा, ये 2,4-DB को कन्वर्ट करेगा 2,4-D में, जो कि एक टॉक्सिक कंपाउंड है। तो 2,4-D देन उसको कंट्रोल कर लेगा। तो इसलिए ब्रॉड लीफ वीड कंट्रोल के लिए पल्सेस में 2,4-DB अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग वीड क्योर्स स्नेक बाइट? ऑप्शन आर आर्जिमन मैक्सिकाना, फाइलैंथस नीरूरी, ल्यूकस आस्पेरा, साइप्रस रोटुंडस। द राइट आंसर इज ल्यूकस आस्पेरा। ओके, डिफरेंट वीड्स का डिफरेंट एथनोबॉटनी जो स्टडी करते हैं ना, डिफरेंट वीड्स का क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या पॉजिटिवली हम लोग उसको बेनिफिशियली यूज कर सकते हैं, उसको स्टडी किया जाता है उसमें। एथनोबॉटनी उस सेक्शन को बोलते हैं एथनोबॉटनी। ओके, तो ल्यूकस आस्पेरा को जनरली स्नेक बाइट क्योर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देन फाइलैंथस नीरूरी को जंडिस क्योर के लिए यूज़ किया जाता है, जंडिस। आर्जिमन मैक्सिकाना को स्किन डिजॉर्डर क्योर के लिए यूज़ किया जाता है। देन साइप्रस रोटुंडस को अगरबत्ती ये प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट वीड्स का डिफरेंट बेनिफिशियल यूज रहता है, उसको भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following weeds shows host parasitic relationship? Which among the following weeds shows host parasitic relationship? Options are crop associated weed, crop bound weed, season bound weed, all of the above. The right answer is crop bound weed. Crop bound weed यानी parasitic weeds. Okay, parasitic weeds क्या क्या होता है? parasitic weeds कुछ होते हैं टोटल पैरासाइट, कुछ होते हैं सेमी पैरासाइट. ओके, टोटल में फिर रूट, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, सेमी में फिर सेमी रूट पैरासाइट, सेमी स्टेम पैरासाइट. तो टोटल रूट में आ गया आपका ओरोबैंके, देन टोटल स्टेम में आ गया कुस्कुटा, सेमी रूट में आ जाएगा स्ट्राइगा, ओके, सेमी स्टेम में आ जाएगा लोरांथस. ये सारे एग्जाम्पल इसको आपको याद रखना है, राइट. देन क्रॉप एसोसिएटेड वीड क्या होता है? कुछ वीड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्रॉप फील्ड में पाया जाए, क्योंकि उनको जो सुइटेबल एनवायरनमेंट है वो उसी फील्ड में उसी क्रॉप के साथ ही मिलता है. सपोज हम एक राइस क्रॉप लेते हैं, तो उस वहाँ पे क्या क्या कंडीशन रहेगा? इकोलॉजिकल कंडीशन जो है वहाँ पे वार्म रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, वहाँ पे हम वाटर लगिंग करेंगे. तो जो एकाइनोक्लोआ जैसे क्रॉप हो गया, एकाइनोक्लोआ कोलोना हो गया, क्रसगली हो गया, तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है उसी फील्ड में, तो उसको बोलेंगे क्रॉप एसोसिएटेड वीड. जैसे कि चिनोपोडियम हो गया, फालरिस माइनर हो गया, ये वीट के साथ एसोसिएटेड है, उसको बोलेंगे क्रॉप एसोसिएटेड वीड. और कुछ वीड्स होते हैं वो सीजन बाउंड होते हैं, मतलब यानी खरीफ सीजन में वो दिखाई देंगे, या फिर रबी सीजन में दिखाई देंगे, या फिर समर सीजन में दिखाएंगे, तो उनको बोलते हैं सीजन बाउंड वीड. क्रॉप बाउंड वीड जो होता है वो क्रॉप में होस्ट पैरासाइटिक रिलेशनशिप, वो जो वीड्स होते हैं वो पैरासाइट के हिसाब से काम करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं मतलब क्रॉप से, और जो क्रॉप होता है वो होस्ट के हिसाब से काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉप बाउंड वीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजेट स्टेज एंड बोल्टिंग स्टेज इन डिफरेंट सीजन और ईयर्स आर सीन इन. रोजेट स्टेज एंड बोल्टिंग स्टेज इन डिफरेंट सीजन और ईयर्स आर सीन इन. ऑप्शंस आर एनुअल वीड्स, मल्टी सीजन एनुअल वीड्स, बाइनियल वीड्स, पेरिनियल वीड्स. द राइट आंसर इज बाइनियल वीड. बाइनियल वीड क्या होता है? इसका एक सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और एक सीजन में फ्लावरिंग आके फ्रूटिंग होके फिर मर जाता है, ये कंप्लीट होता है लाइफ साइकिल. तो वेजिटेटिव स्टेज को बोलते हैं रोजेट स्टेज, ये रोजेट स्टेज. देन फ्रूटिंग स्टेज को बोलते हैं बोल्टिंग स्टेज, ओके, फ्लावरिंग स्टेज को बोल्टिंग स्टेज बोलते हैं. तो ये एक बाइनियल वीड का जो है डिफरेंट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है. तो बाइनियल वीड का जो एग्जाम्पल है क्या क्या है? डाउकोस कैरोटा हो गया, देन सिरसियम वल्गर, चिकोरियम, देन अल्टरनांथेरा, ये सारे है बाइनियल वीड. एनुअल वीड किसको बोलते हैं? जिसका एक ही सीजन में या फिर एक ईयर में उसका लाइफ साइकिल, टोटल लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होता है. दिज आर जनरली प्रोपोगेटेड बाय सीड्स, ओके. जो एनुअल वीड्स होता है वो जनरली प्रोपोगेटेड बाय सीड्स. मल्टी सीजन एनुअल का एग्जाम्पल क्या क्या है? एकाइनोक्लोआ हो गया, एकाइनोक्लोआ, देन एल्यूसाइन, देन एक्लिप्टा, फाइलांथस, ये सारे मल्टी सीजन एनुअल वीड का एग्जाम्पल है. देन पेरिनियल वीड्स में फिर डिफरेंट टाइप का पेरिनियल वीड्स आ जाता है. देन सिंपल पेरिनियल, जैसे कि सपोज कुछ सम आर क्रीपिंग पेरिनियल. सो देर आर डिफरेंट वीड क्लासिफिकेशन, यू शुड गो थ्रू टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए टोटल रूट पैरासाइटिक वीड. हम लोग डिस्कस कर लिए इसके बारे में. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए टोटल रूट पैरासाइटिक वीड. ऑप्शंस आर कुस्कुटा चाइनेंसिस, लोरांथस लॉन्गिफोरस, ओरोबैंकेस सरनुआ, स्ट्रिगा ल्यूटिया. द राइट आंसर इज ओरोबैंकेस सरनुआ. ये है टोटल रूट पैरासाइट, ओके, या फिर उसको बोलते हैं होलो रूट पैरासाइट. कोस्कुटा जो है ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट. लोरांथस जो है ये सेमी स्टेम पैरासाइट. स्ट्राइगा जो है ये सेमी रूट पैरासाइट, ओके. ये सारे जो है पैरासाइटिक वीड और इसको बोलते हैं क्रॉप बाउंड वीड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, concept of Boileau coefficient was proposed by. Concept of Boileau coefficient was proposed by. Options are Jethro Tull, Malik, Hans Mollis, Hittrov. The right answer is Hittrov. Boileau coefficient क्या होता है? ये एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना हो गया है, ये ऑब्सोलीट हो गया है ये कॉन्सेप्ट. हिट्रोव क्या बोले थे कि कोई भी जो डिस्पर्सल है, ओके, वीड सीड डिस्पर्सल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी, ओके. डेंसिटी अगर वीड का ज़्यादा है तो फिर उसका जो डिस्पर्सल है वो कम होगा, राइट.
सो ये जो है इसका मेन कॉन्सेप्ट था वॉयलर कोएफिशिएंट का। जेथरो टूल जो है वो कॉइन किए थे टर्म वीड। मलिक जो है ये पहली बार जो है आइसोप्रोस्टेरोन रेजिस्टेंस जो मिला था फालर माइनर में, ये पहले रिपोर्ट किए थे मलिक ने। हांस मोलिस जो है ये एलोपैथी टर्म कॉइन किए थे, एलोपैथी, राइट, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वीड कंपीटिंग एबिलिटी अमंग रे, व्हीट, ओट एंड बार्ली? What is the correct order of wheat competing ability among ray, wheat, oat, barley? Options are barley greater than ray, greater than wheat, greater than oat, barley greater than wheat, greater than ray, greater than oat, ray greater than barley, greater than wheat, greater than oat, ray greater than wheat, greater than barley, greater than oat. The right answer is बार्ली ग्रेटर देन रे ग्रेटर देन व्हीट ग्रेटर देन ओट। बार्ली में एक ग्रामाइन करके अल्कालॉइड जो है वो रूट से सीक्रेट होता है, तो इसलिए उसका जो कॉम्पिटिंग एबिलिटी है, और बार्ली का रूट जो ग्रोथ होता है, इनिशियल ग्रोथ होता है, वो भी फास्टर होता है, राइट। तो इसीलिए बार्ली का जो वीड कॉम्पिटिंग एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल पुलिंग ऑफ एक्वेटिक वीड्स along with their root and rhizomes from the land is called? Mechanical pulling of aquatic weeds along with their roots and rhizome from the land is called? Options are mowing, spudding, dredging, shearing. The right answer is dredging. चेन लगा के अगर हम aquatic जो floating aquatic weeds है उसको पूरा मतलब अंदर से निकालेंगे तो उसको बोलते हैं ड्रेजिंग। देन मोइंग क्या होता है? मोइंग एक सरफेस रिमूवल ऑफ वीड, ओके, सरफेस लेवल पे जो जैसे लॉन मोयर बोलते हैं उसको ना, तो वो मोइंग बोलते हैं, ओके, सरफेस लेवल से वीड को काटना उसको बोलते हैं मोइंग। स्पॉडिंग क्या होता है? वो डीप सॉइल के डीप से अंदर से जाके वो वीड को निकालना उसको बोलते हैं स्पॉडिंग। शेयरिंग क्या होता है? रिपीटेड फ्लेमिंग, ओके, रिपीटेड फ्लेमिंग टू द वीड टू कंट्रोल इट। Next question, which among the following weeds are mostly dominated in zero tillage condition? Which among the following weeds are mostly dominated in zero tillage condition? Options are annual weed, biennial weed, perennial weed, parasitic weed. The right answer is perennial weeds. Perennial weeds are mostly dominated in zero tillage condition. And next question, ligule and auricle are the characteristic features of which type of weeds? Ligule and auricles are the characteristic features of which type of weeds? Options are grasses, sedges, broadleaf, all of the above. The right answer is grasses. Ligule and auricle होता क्या है? सपोज ये हो गया स्टेम और उसके बाद ये हो गया लीफ सीथ, यहाँ पे स्टेम में लगा हुआ है, और ये लीफ मार्जिन हो गया, राइट, ग्रासेस में। तो यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सपोज ये हो गया जो है हमारा लीफ, तो यहाँ पे एक ऐसा करके पेपरी स्ट्रक्चर रहता है, ओके, इसको बोलते हैं लिग्यूल। और यहाँ पे क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर एक रहता है अपेंडेजेस टाइप का, उसको बोलते हैं ऑरिकल, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर दोनों पाया जाता है ये ग्रास केस में जनरली पाया जाता है। इसके बारे में भी लिग्यूल, ऑरिकल, ये सारे के बारे में भी आप लेक्चर मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप उसको भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन which among the following dormancy seeds germinate immediately after the favorable condition restored and no dormancy breakers required? इनमें से कौन सी डॉर्मेंसी है जहाँ पे अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो वो क्विकली जर्मिनेट कर जाएगा और डॉर्मेंसी ब्रेकिंग केमिकल उसके लिए चाहिए नहीं होता है? ऑप्शन सर इनेट डॉर्मेंसी, इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी, एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी, बोथ इंड्यूस्ड एंड एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी। द राइट आंसर इज एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी। इनेट डॉर्मेंसी क्या होता है? डॉर्मेंसी ड्यू टू इनर मैकेनिज्म और फिर जेनेटिक मैकेनिज्म या फिर जो ही इनहेरेंट मैकेनिज्म के वजह से जो सपोज रूडिमेंटरी एम्ब्रियो हो गया या फिर हार्ड सीड कोट हो गया, ये सारे जो इनेट प्रॉपर्टी है, ये जो जेनेटिक कैरेक्टर है, उसके वजह से जो डॉर्मेंसी होता है सीड में उसको बोलते हैं इनेट डॉर्मेंसी। इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी क्या होता है? ये कोई भी केमिकल सपोज एक्सपोजर हो गया या फिर कोई सपोज डिफरेंट कंसंट्रेशन का गैसेस हो गया या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है इंड्यूस डॉर्मेंसी, इंड्यूस करता है वो डॉर्मेंसी सीड में। एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी क्या है? सपोज एक वीड डेप्थ मतलब बहुत
डेप्थ में वो प्लेस्ड है, ओके, वो वहाँ पे है। तो उसको क्या है, लाइट, सपोज वो फोटोप्लास्टिक सीड है, लाइट मिलने से ही वो जर्मिनेट करेगा और वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रहा है। तो उस कंडीशन में उसको जो डोरमेंसी रहता है उसका N4 डोरमेंसी, वो जब भी सरफेस लेयर में आ जाएगा तुरंत जर्मिनेट करेगा और उसके लिए कोई हमको केमिकल जैसे स्ट्रैटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, डिफरेंट केमिकल्स ऐड करते हैं डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए, उसको चाहिए नहीं होता है। तो उसको बोलते हैं एनफोर्स्ड डोरमेंसी। और तीनों टाइप का डोरमेंसी जो है ये कहाँ पे आपको मिलेगा, अवेना फाटुआ में। अवेना फाटुआ जो वीड है वहाँ पे ये तीनों टाइप का डोरमेंसी आपको मिल जाएगा, इंड्यूस्ड, इनेट एंड एनफोर्स्ड डोरमेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the dispersal mechanism where weed seeds dispersed by birds is called. The dispersal mechanism where weed seeds dispersed by birds is called. Options are ornithocory, mammalocory, myrmecocory, endozoocory. The right answer is ornithocory. डिस्पर्सल मैकेनिज्म यानी जो सीड्स, सपोज मदर प्लांट में सीड प्रोड्यूस होता है तो वहाँ से डिस्पर्सल मतलब कि वहाँ से कैसे डिफरेंट एरिया में वो सीड पहुँचता है। तो अगर बर्ड्स उसको कैरी करके लेते हैं तो उसको बोलते हैं, वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑर्निथोकोरी। देन मामल्स अगर कैरी करके लेते हैं उसको, देन उसको बोलते हैं मामालियोकोरी। देन अगर एंट्स उसको कैरी करके लेते हैं उसको बोलते हैं मिर्मेकोकोरी। एंड अगर वो कंज्यूम होते हैं, सपोज कोई मैमल या कैटल हो गया उसको कंज्यूम कर लिया अपने खाने में, सपोज वीड वो खा लिया और उसको कंज्यूम कर लिया, उसको जाके फिर उसका जो एक्सक्रीटा हो गया वो डिफरेंट फील्ड में वो हो गया, तो फिर उसको बोलते हैं एंडोजूकोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वन स्पेसीज हैज नेगेटिव इफेक्ट एंड अदर स्पेसीज एक्सपीरियंस नो और जीरो इफेक्ट? ऑप्शंस आर कॉम्पिटिशन, अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म। The right answer is amensalism. Okay, so there are several types of competition between अगर दो organisms जो है वो अवेट करते हैं, अगर एक साथ रहते हैं, सपोज जैसे कि क्रॉप एंड वीड्स हो गया हमारे केस में, वीड मैनेजमेंट के केस में, तो वहाँ पे क्रॉप एंड वीड दोनों को सेम रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, लाइट चाहिए होता है। वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप का ऑफ इंटरेक्शन आता है, दो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन आता है क्योंकि वो दोनों एक साथ रहते हैं। तो वहाँ पे आइदर कमेंसलिज्म हो गया, आइदर अमेंसलिज्म हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, या फिर जो है पैरासिटिज्म हो गया, ये सारे जो है देर आर 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस अवेलेबल। सो अमेंसलिज्म में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म में एक को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक के ऊपर और एक जैसे था वैसे ही रहता है। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक बेनिफिटेड होता है और एक जैसे था वैसे ही रहता है, मतलब न्यूट्रल रहता है। पैरासिटिज्म में एक को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है और एक नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे ये जो पैरासिट होता है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट यहाँ से कलेक्ट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following weed is called nitrophilous weed? Which among the following weed is called nitrophilous weed? Options are Amaranthus, Portulaca, Chenopodium, Digitaria. The right answer is Amaranthus. Amaranthus को क्यों नाइट्रोफाइलस weed बोलते हैं, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन, इसका जो नाइट्रोजन अपटेक करने का कैपेसिटी है वो बहुत हाई है, और इसका जो नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन है वो भी बहुत हाई है दैन डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स। पोर्तुलाका एंड चिनोपोडियम जो है ये पोटेशियम लवर है, ओके, तो ये बहुत सारे पोटेशियम अपटेक करते हैं सॉइल से। डिजिटारिया जो है ये फॉस्फोरस लवर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एम्फासाइज्ड ऑन complete elimination of weeds from crop field? Which among the following emphasized on complete elimination of weeds from crop field? Options are control, management, prevention, eradication. The right answer is eradication. So there are different weed management methods, like suppose eradication क्या होता है, इस केस में हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फील्ड से हम लोग कंप्लीटली उसको वीड को हटा दें, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं या फिर सॉइल स्टेरिलेंट अप्लाई करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोरेट हो गया, या फिर डिफरेंट सॉइल स्टेरिलेंट अप्लाई करते हैं, ताकि वो जितना भी वीड सीड्स है उसके साथ भी क्रॉप सीड्स जो है वो भी किल आउट हो जाए, वाइप आउट हो जाए उस फील्ड से, तो उसको बोलते हैं इरेडिकेशन। प्रिवेंशन क्या होता है,
प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोलते हैं। तो प्रिवेंशन मतलब कि हम डिफरेंट इम्प्लीमेंट उसको साफ करके एंटर करेंगे हमारे फार्म पे, या फिर मतलब वीड्स को हम अल्टीमेटली आने नहीं देंगे हमारा फील्ड को इन्वेस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन, मतलब प्रिवेंट करेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक इंजुरी लेवल तक, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या फिर इकोनॉमिक इंजुरी लेवल तक हम लोग स्टडी करेंगे। मतलब जो वीड का पॉपुलेशन है या फिर वीड का जो हार्म करने का जो पोटेंशियल है उसको इसी के नीचे ही रखेंगे, मतलब कंप्लीट उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, इसी के नीचे ही रखेंगे, मतलब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे, ताकि हमारा जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स दैट कैन बी मिनिमाइज्ड। सो दैट इज मैनेजमेंट। ये इसका मेन पर्पज है इकोलॉजिकल बैलेंस या फिर डाइवर्सिटी रखना इन इकोलॉजी। देन कंट्रोल में क्या होता है, कंट्रोल में ऐसा कोई इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या फिर उस वहाँ पे मेन एम रहता है कि वीड पॉपुलेशन कम करना जितना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following crop are sacrificed for main crops to prevent parasitic weed infestation? Which among the following crops are sacrificed for main crops to prevent parasitic weed infestation? Options are trap crop, catch crop, cash crop, fowling crop. The right answer is catch crop. कैच क्रॉप में क्या होता है, सपोज एक मेन क्रॉप हम लगा दिए, उससे पहले कुछ कैच क्रॉप लगाते हैं। ओके, कैच क्रॉप लगाने से क्या होगा, जितने भी वीड सीड्स है वो उसको होस्ट हिसाब से वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट अपटेक करने के लिए वो जर्मिनेट करेंगे और इसको इसके ऊपर ग्रो करेंगे। उसका फ्लावरिंग से पहले जो वीड ग्रो करते हैं, मतलब पैरासाइटिक वीड होस्ट प्लांट के ऊपर, जो कि कैच क्रॉप हम ले रहे हैं, उसको ग्रो करने के बाद उसका फ्लावरिंग से पहले, उसका सीड प्रोडक्शन से पहले उसको क्या किया जाएगा, उसको लेके बर्न किया जाएगा या फिर बुरीड कर दिया जाएगा। बुरीड करने से तो नहीं होगा, बर्न कर दिया जाएगा। ओके, उसको जला दिया जाएगा। तब क्या होगा, तब वहाँ पे जो सीड्स थे वो काइंड ऑफ कम हो गया, सीड बैंक से जो सीड रिजर्व था वो काइंड ऑफ कम हो गया। तो नेक्स्ट क्रॉप में ज़्यादा वीड्स नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक क्रॉप सैक्रिफाइस होता है, जो कैच क्रॉप होता है वो सैक्रिफाइस किया जाता है, मतलब उसको कंप्लीटली जला दिया जाता है या फिर उसका कोई यूज़ नहीं रहता है। ट्रैप क्रॉप में लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रैप क्रॉप क्या होता है, ये एक क्रॉप है, उसका रूट जो है कुछ सिक्रेशन करता है, जो कि सीड्स को लगता है कि यही मेरा जो है पैरासाइट मतलब होस्ट है, तो वो जर्मिनेट करता है और ग्रो करता है, लेकिन उसको होस्ट नहीं मिलता है। ये ट्रैप क्रॉप है जिसके ऊपर ग्रो नहीं कर सकता जो है पैरासाइटिक प्लांट। तो उस केस में वो जर्मिनेट करता है और मर जाता है, क्योंकि उसको फूड नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है, कैश क्रॉप में हम लोग जैसे शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, उसको जनरली बेचने के लिए या फिर मतलब सेल आउट करने के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए उसको किया जाता है, कैश क्रॉप जो होता है। फाउलिंग क्रॉप क्या होता है, ये क्रॉप करने से वीड्स जर्मिनेशन या फिर जो नेमाटोड पॉपुलेशन वो ज़्यादा होता है, मतलब ये एक काइंड ऑफ वीड पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है जो क्रॉप, उसका कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने से उसको बोलते हैं फाउलिंग क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेल सीडबेड इज a dash type of weed control. Stale seedbed is a dash type of weed control. Options are preventive, cultural, mechanical, cultural, preventive. The right answer is cultural, preventive. Stale seedbed में होता क्या है, सपोज एक फील्ड हम ले रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम लोग इरिगेशन कर देते हैं, सपोज सैचुरेशन लेवल में हम लोग इरिगेशन कर देते हैं, तो क्या होगा, जो वीड सीड्स है वो जर्मिनेट करेंगे, तब उसको हम आइदर मैनुअल मतलब मैकेनिकली आइदर कुछ प्लाव लेके इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे उसी फील्ड में, या फिर हम केमिकली वहाँ पे पैराक्वाट ग्लाइफोसेट जो कि नॉन रेसिडुअल हर्बिसाइड है और टोटल किलर है, उसको अप्लाई करके उसको किल कर देंगे। फिर से ऐसे 2-3 बार करने से वहाँ से जो सीड बैंक है वहाँ से सीड रिजर्व खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा, तो इजीली हम लोग वहाँ पे विदाउट वीड इंटरफेरेंस वहाँ पे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप रेस कर सकते हैं इजीली। तो वो जो मेथड है उसको बोलते हैं स्टेल सीडबेड। तो यहाँ पे हम लोग प्रिवेंट करने की कोशिश किए, ताकि मतलब वीड्स को वहाँ पे ग्रो करने के लिए मतलब कम्पीट करने के लिए वो प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ये प्रिवेंटिव भी हो गया। कल्चरल क्यों हो गया, यहाँ पे हम इरिगेशन करके उसको वीड को जर्मिनेट कर रहे हैं या फिर प्लाविंग कर रहे हैं, तो ये सारे कल्चरल हो गया, तो इसको बोलते हैं कल्चरल कम प्रिवेंटिव मेथड। स्टेल सीडबेड याद रखना कि 2 टाइप का होता है, एक होता है कल्चरल स्टेल सीडबेड और एक होता है केमिकल स्टेल सीडबेड, जहाँ पे हम हर्बिसाइड करके यूज़ करके कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल स्टेल सीडबेड टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉइल सोलराइजेशन मेथड वाज डेवलप्ड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्री? कौन सी कंट्री में सॉइल सोलराइजेशन मेथड जो है डेवलप हुआ था? ऑप्शन सर इंडिया, चाइना, इजराइल, यूएसए। राइट आंसर इज इजराइल। इजराइल में जो है एक साइंटिस्ट थे याकूब, ओके, तो वो सॉइल सोलराइजेशन जो मेथड है ये डेवलप किए थे। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? सपोज एक फील्ड है, वहाँ पे सपोज मॉइस्चर है और यहाँ पे हम लोग एक पॉलीथीन शीट जो कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट होता है उसको उसके ऊपर कवर कर देंगे। तो तब होगा क्या, ये जो रेडिएशन आता है ये क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा और कुछ रेडिएशन जो है सॉइल मॉइस्चर है उसमें ट्रैप हो जाएगा। राइट, सॉइल मॉइस्चर में कुछ रेडिएशन ट्रैप हो गया और जो बाउंस बैक होगा भी रेडिएशन, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपको पता है कि वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, तो ये पॉलीथीन के अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जो एयर होगा एडजेसेंट टू दैट सॉइल वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो ये जो वीड सीड्स होंगे सरफेस लेयर में वो किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, ओके, इनएक्टिव हो जाएंगे या फिर किल हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं जो है सोलराइजेशन मेथड, सॉइल सोलराइजेशन। राइट, तो सॉइल सोलराइजेशन इसलिए बोलते हैं एक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। विदाउट मॉइस्चर ये इफेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल ओवर केमिकल मेथड? केमिकल वीड कंट्रोल मेथड से हम लोग अगर बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल मेथड में शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? ऑप्शन सर डैमेज ऑन इकोनॉमिक क्रॉप, वेरी स्लो एक्शन, इरेडिकेशन नॉट पॉसिबल, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल करते हैं या फिर कुछ बायो एजेंट उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो जो हमारा एक्जोटिक वीड है या फिर एलियनो वीड है उसको कंट्रोल करेगा, तो वो जो इंसेक्ट है, सपोज कोई इंसेक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे बायो एजेंट के हिसाब से वहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, ये मान के चलते हैं कि उस क्रॉप को जो और वो जो वीड है, इंट्रोड्यूस्ड वीड है, उसको ख़त्म करेगा या फिर उसको किल करेगा, उसको खा जाएगा। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वो दूसरा क्रॉप जो है वहाँ पे उसको भी हार्म पहुँचा सकता है। राइट, बायोजेन, इसीलिए वहाँ बायोजेन को स्टार्वेशन टेस्ट भी किया जाता है। स्टार्वेशन टेस्ट, सपोज उसका स्टार्वेशन रहने का, जो उसका भूखा रहने का कैपेसिटी जो है वो कितना है उसको टेस्ट किया जाता है। ये हो गया एक। देन वेरी स्लो एक्शन, क्योंकि बायोजन छोड़ने के बाद वो मल्टीप्लाई करेगा वहाँ पे, उसके बाद खाएगा, धीरे धीरे खाएगा, कितना स्लो उसका वो एक्ट करेगा। राइट, स्लोली एक्ट करेगा। देन इरेडिकेशन नॉट पॉसिबल। बायोजन का मेन प्रिंसिपल क्या है? सपोज यहाँ पे वीड्स है, ओके, हम बायो एजेंट लॉन्च किए तो वीड को धीरे धीरे अपना जो है पॉपुलेशन इंक्रीज करता रहेगा और वीड को खाता जाएगा। तो फिर वीड पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, तो वीड पॉपुलेशन डिक्रीज होने से ये जो बायो एजेंट इंक्रीज हो रहे थे तो वो क्या कंज्यूम करेंगे, तो उनका भी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। उसके बाद जो इनका पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज करने से फिर जो वीड है उसका पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, ऐसा होके चलता रहेगा। राइट, तो ये जो है मेन प्रिंसिपल है बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल का। तो इरेडिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल में, जबकि हम केमिकल वीड कंट्रोल में इरेडिकेशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज ऑल्सो कॉल्ड टेलर मेड हर्बिसाइड? ऑप्शन सर आइसोप्रोचुरन, प्रेटिलाक्लोर, पेंडिमिथालिन, ग्लाइफोसेट। द राइट आंसर इज पेंडिमिथालिन। पेंडिमिथालिन को क्यों टेलर मेड हर्बिसाइड बोला जाता है? क्योंकि आप अगर देखोगे डिफरेंट बहुत सारे फील्ड क्रॉप में इसको यूज़ किया जाता है रैंडमली, मतलब ऑयल सीड में यूज़ किया जाता है, पल्सेस में यूज़ किया जाता है, सीरियल्स में यूज़ किया जाता है, और ये एक प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। राइट, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। और ये कौन सी ग्रुप में आता है? डाई नाइट्रो एनिलिन ग्रुप में, डाई नाइट्रो एनिलिन। डाई नाइट्रो एनिलिन में और भी जो केमिकल्स है, जैसे कि सपोज हर्बिसाइड्स है, जैसे कि फ्लूक्लोरालिन, देन ट्राईफ्लोरालिन, ये दोनों केमिकल, ये जो है ये पीपीआई है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन किया जाता है इसको। राइट, लेकिन पेंडिमिथालिन जो है उसी ग्रुप का, डाइनाइट्रोएनिलीन ग्रुप का, ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। इसको टेलर मेड हर्बिसाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रैंडमली कोई भी, ये इतना सिलेक्टिव हर्बिसाइड है कि इसको किसी भी क्रॉप में हम प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is an example of non-selective systemic herbicide? Which among the following is an example of non-selective systemic herbicide? Options are 2,4-D, paraquat, glufosinate AM, glyphosate.
द राइट आंसर इज ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट एक है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड और एक सिस्टेमिक हर्बिसाइड। नॉन सिलेक्टिव मतलब ये प्लांट के ऊपर पड़े या फिर वीड्स के ऊपर पड़े उसको किल करना ही है उसको। सिस्टेमिक मतलब एक होता है सिस्टेमिक और एक कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब वो जहाँ पे पड़ेगा, जहाँ पे गिरेगा वो केमिकल मतलब हर्बिसाइड, वहीं उस रीजन को किल करेगा। लेकिन सिस्टेमिक होता है वो जाके मतलब प्लांट के अंदर भी उसको टोटली किल कर सकता है, वो सिस्टेमिक होता है। ये जो पाराकाउट एंड ग्लूफोसिनेट एम है ये भी नॉन सिलेक्टिव है लेकिन ये कॉन्टैक्ट है। 2,4-D जो है ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, critical selectivity index above which herbicide application are considered safe without facing any phytotoxicity effect on crops. Options are 1, 2, 3, 5. The right answer is 2. Selectivity index क्या होता है देख लें। Selectivity index is equal to maximum dose of herbicide that can tolerated by plant divided by minimum dose of herbicide that can control the weed. Okay, maximum dose of herbicide that can tolerated by plant divided by minimum dose of herbicide that can control the weed, particular weed. So that is known as selectivity index. And selectivity index अगर 2 से ज़्यादा रहता है तो हम एक हर्बिसाइड को कंसिडर करते हैं कि ये एक सिलेक्टिव मतलब एक सेफ हर्बिसाइड है टू अप्लाई टू रिकमेंड टू ए फार्मर और टू अप्लाई फॉर टू ए फार्मर। क्योंकि वहाँ पे जो गैप है, सपोज एक हर्बिसाइड है, सपोज पेंडिमिथलिन ले जाते हैं या फिर सपोज 2,4-D ले जाते हैं, उसको अगर हम 500 ग्राम पर हेक्टर के हिसाब से अप्लाई करते हैं तो वो इजीली वीड को, जो ब्रॉड लीफ वीड है, उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसको अगर हम 750 ग्राम पर हेक्टर के हिसाब से अप्लाई करते हैं तो फिर वो क्रॉप में फाइटोटॉक्सिसिटी दिखाई देता है। तो इट्स नॉट ए गुड हर्बिसाइड टू रेकमेंड टू फार्मर, इट्स नॉट सेफर बिकॉज इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ तो फिर वो क्रॉप में फाइटोटॉक्सिसिटी दिखा रहा है। और इनकेस अगर वहाँ पे हम अगर 2000 ग्राम भी लेते हैं, अगर 2 kg भी अप्लाई करते हैं तो वो क्रॉप के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो फिर उसको हम मानेंगे क्या है, वो सेफ हर्बिसाइड है टू रेकमेंड टू ए फार्मर। So that is why selectivity index is calculated. Next question. Herbicide resistance was first recorded for which among the following group of herbicide? Herbicide resistance was first recorded for which among the following group of herbicide? Options are urease, triazine, phenoxyalkanoic acid, carbamate. The right answer is triazine. So the first herbicide resistance that was seen in the weeds Senecio vulgaris, और इसको बोलते हैं कॉमन ग्राउंड सेल। ओके, तो ये जो है ट्रायाजिन रेजिस्टेंस था। सेनेसियो वल्गारिस वीड जो है ये ट्रायाजिन, मोर स्पेसिफिकली अट्राजिन को रेजिस्ट किया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग हर्बिसाइड बोथ symplastic and apoplastic movements seen together? In which among the following herbicide both symplastic and apoplastic movements seen together? Options are 2,4-D, glyphosate, Dalapon, all of the above. The right answer is all of the above. 2,4-D, glyphosate and Dalapon. Here you can find both symplastic and apoplastic movement. Symplastic and apoplastic movement कैसा होता है? सपोज ये एक प्लांट है, ओके, ये उसका फॉलेज है। सपोज हम एक हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं, सपोज यहाँ पे हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं सॉइल में, तो फिर वो प्लांट क्या करेगा, वो जो प्लांट है वो रूट के द्वारा जाइलेम होके, ट्रांसपिरेशन पूल होके वो फॉलेज तक जाएगा वो हर्बिसाइड। तो इसको बोलते हैं अपोप्लास्टिक मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है जो लिविंग सेल्स है, सपोज जाइलेम के द्वारा वो जा रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है, तो वो एक नॉन लिविंग सेल में जा रहा है। या फिर हम अगर उसी हर्बिसाइड को फॉलेज में अप्लाई करें तो वहाँ पे क्यूटिकल है, क्यूटिन है, क्यूटिकुलर लेयर है, और उसको फिर वो कहाँ से जाएगा, वो फ्लोएम दे के या फिर फूड रिजर्व के साथ, फूड के साथ वो मिल के रूट तक आएगा और इसको हार्म करेगा। तो उसको बोलते हैं सिम्प्लास्टिक, क्योंकि यहाँ पे लिविंग सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो है, अपोप्लास्टिक में नॉन लिविंग सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं, सिम्प्लास्टिक में लिविंग सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं। अपोप्लास्ट जनरली जाइलेम के माध्यम से होता है, सिम्प्लास्ट जनरली फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो ये जो तीनों हर्बिसाइड्स है, 2,4-D, ग्लाइफोसेट, डालापोन, दे कैन मूव इधर थ्रू अपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट और बाय बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following herbicide causes microtubule inhibition and inhibit cell division and elongation?
इनमें से कौन सी हर्बिसाइड जो है वो माइक्रोट्यूबुल इनहिबिटर है एंड इट इज इनहिबिटिंग द सेल डिवीजन एंड एलोंगेशन? ऑप्शन सर 2,4-D, ग्लाइफोसेट, पेंडिमिथालिन, सल्फोसल्फ्यूरन। द राइट आंसर इज पेंडिमिथालिन। ये क्या करता है, माइक्रोट्यूबुल जो है, माइक्रोट्यूबुल उसको इनहिबिट करता है। माइक्रोट्यूबुल क्या होता है, सपोज हम अगर देखेंगे मेटाफेज या फिर एनाफेज में, अगर आपको याद होगा तो माइटोसिस में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो मेटाप्लेट में ऐसे अरेंज होता है और यहाँ से जो माइक्रोट्यूबुल निकलता है ऐसे उसको खींचता है टुवर्ड्स द पोल, राइट। ये हो गया माइक्रोट्यूबुल, इसको बोलते हैं। तो इसको अगर इनहिबिट करता है तो फिर ये एंजाइम का जो क्रोमोसोम है वो वहाँ पे आ नहीं पाता है, मतलब पोलर रीजन पे। तो उस वो क्या करता है, जो सेल डिवीजन है या फिर सेल एलोंगेशन, जनरली सेल डिवीजन, उसको इनहिबिट करते हैं। तो ये है पेंडिमिथालिन। देन 2,4-D का काम क्या है, ये फ्लोएम प्लॉगिंग करता है। ये एक लाइक कैंसरस सेल डेवलप करता है और ये इंक्रीज करता है और मतलब जो फ्लोएम और कंडक्टिंग टिश्यू जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो ये ब्लॉक हो जाता है। तो इसको बोलते हैं फ्लोएम प्लॉगिंग। एंड यहाँ पे जो फूड सप्लाई है ये भी ब्लॉक हो जाता है। एंड ग्लाइफोसेट जो है ये ईपीएसपी सिंथेस को इनहिबिट करता है। ईपीएसपी सिंथेस जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है। वो जो एंजाइम इनहिबिट होने से क्या होता है, ईपीएसपी सिंथेस एंजाइम इनहिबिट होने से सिकिमेट पाथवे जो है वो इनहिबिट होता है। सिकिमेट पाथवे इनहिबिट होने से जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है लाइक ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन, दे आर इनहिबिटेड। सो हमारा जो मेजर प्रोटीन्स है वो फॉर्म नहीं हो पाते हैं। देन सल्फोसल्फ्यूरन जो है वो ALS एंड AHAS, एक्सीटोलैक्टेट सिंथेस एंड एसिटोहाइड्रोक्सी एसिड सिंथेस जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं। तो वहाँ पे जो है ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड लाइक ल्यूसिन, आइसोलेसिन, वैलाइन, ये जो है ब्रांच चेन अमीनो एसिड है, ये सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस हार्मफुल होता है। तो ये कुछ मैकेनिज्म है। मोड, हाँ यहाँ से एक चीज़ याद आया, मोड एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मोड आपको समझना है, मोड एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मोड ऑफ एक्शन मतलब वो कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, कैसे ट्रांसलोकेट हो रहा है प्लांट के अंदर, राइट, उसको बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन मतलब टोटल जो प्रोसेस है, मतलब ऑब्जर्व स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म, टोटल प्रोसेस को बोलते हैं मोड ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ओनली दैट पार्ट, दैट बायोकेमिकल पार्ट that causing the death of the plant, या फिर that causing the negative impact on weed. Okay, what is the particular mechanism by which a herbicide kills a weed, right? That is mechanism. यहाँ पे मैं कोशिश किया आपको बहुत सारे चीज़, जो बहुत सारे कंसेप्ट है बताने के लिए वीड मैनेजमेंट का। तो आपको अगर ये वीडियो, कंसेप्चुअल लेक्चर या फिर मॉक टेस्ट अच्छा लगता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आपके एसोसिएटेड या फिर आपको फ्रेंड्स हो गया या फिर जूनियर्स हो गए, उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको कोई भी डाउट भी आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में आपको हमको बता सकते हैं, या फिर आप डिस्कशन के लिए या फिर डेली टेस्ट के लिए, डेली क्विज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक दैट इज़ एग्रीकल्चर Q&A। ओके, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। टिल देन, बाय बाय।